Hi everyone. So it's been 3 a.m. So let us start the next topic of the constitutional bodies and let us dig into the Public Service Commission. So what are the constitutional bodies which draw their power anything from the constitution, which are made under the constitution, not by the act? Okay. The constitution maker recognizing the importance of role played by the civil servant in the administration of policy implemented in the country. ये constitutional maker knows कि क्या क्या रोल प्ले कर सकता है एक सिविल सर्वेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ना so that we have done also, which is also in the chapter 1. So we have done also, so you can go and see the playlist as well, and I'll put that in the I button also. So the chapter contains provision related to both the Union Public Service Commission and the State Public Service Commissions. The constitutional status indicates the independence and permanence of the constitution. So yes, if it is constitutionally created, it is independent. And basically the constitutional bodies are independent to work. नहीं तो ये किसी गवर्नमेंट में ही इंक्लूड कर दी जाती है. Okay. So these are some of the relevant articles. We'll go through them in detail one by one. Let us just go in the Union Public Service Commission. UPSC is India's central recruitment agency. UPSC is independent constitutional body under the Article 315 to 323. Again, Part 14, Chapter 2 of the Constitution of India. Provisions related to discharge duties of public service commissions, the functions and obligations are mentioned in under Article 320. So you can see 320 is nothing. What are the functions of UPI public service commissions? Basically, how their services are going done, the obligations and वहाँ सब mention है. वेरियस एग्जामिनेशंस करवाती है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज के लिए. ठीक है. We all know that ना UPSC is all over. पापा सभी के घर में है, as Anubhav Singh Basi said. Okay. History of Union Public Service Commission. So ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूट की थी. उस टाइम पे सिविल सर्विस होते थे. IPS is known to be the imperial police service at that time. The Lee Commission 1924 had suggested in their report that the creation of an prejudiced and independent public service commission, which is जिसमें कोई भेदभाव न हो और इंडिपेंडेंट बॉडी हो. ठीक है. दैट्स पब्लिक सर्विस कमीशन. On the basis of such suggestions, the Union Public Service Commission was established on 1st October 1926. Okay, so this is the date when it's created. It was later reconstituted as the Federal Public Service Commission. So first of all, it's Public Service Commission, then it's reconstituted as the Federal Service Commission. Okay, under the mini constitution, that is your Government of India Act 1935. The Federal Public Service Commission was renamed as the UPSC after independence. So पहले आपके पास सिर्फ ये थी पब्लिक सर्विस, फिर इसको चेंज किया गया आपका फेडरल पब्लिक सर्विस, देन इट इज चेंज टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बिकॉज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. Composition. So the constitution without specifying the strength of the commission has left the matter to the discretion of the president who determined its composition. Composition कैसी होगी, hierarchy कैसे होगी, persons क्या होंगे, members कैसे होंगे. So that is constitutional जो मेकर थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया. ठीक है जी, क्योंकि ये सब कुछ प्रेसिडेंट्स आप देखेंगे, ऑन गोइंग प्रेसिडेंट जो भी होगा. ठीक है. ओके. क्वालिफिकेशन कोई मेंशन नहीं है एज सच, बट one half of the members of UPSC should be such that they held public offices at least 10 years, either under the central or the state government, as per UPSC Regulations 1969. The maximum number of members of the commission, excluding the chairman, shall be 10. The maximum number, according to this act, the maximum number of members of the commission should be 10. यानी कि 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, लेकिन उसको निकाल के whatever the member, of course the chairman को निकाल के 10 maximum member. Now appointment the president of India appoints, we know it. ठीक है. तो 6 ईयर के टेन्योर के लिए होल्ड करते हैं, या फिर जहाँ तक जब तक आप 65 के ना हो. फॉर एग्जांपल किसी को 62 में ये पोस्ट मिलती है,
पर अब पोस्ट के साल हैं से, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो 6 साल के लिए होती है, तो अगर एज उसकी 65 होने वाली है 3 साल में, तो वो नौकरी सिर्फ 3 साल ही कर पाएगा। मे बी, आई डोंट नो, मे बी इट मे बी एक्सटेंडेड बाय प्रेसिडेंट itself. Appointment of acting chairman. The president can also appoint one of the member of UPS as an acting chairman of the commission in the following circumstances. So, वन ऑफ द यूपीएससी के मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन बनाया जा सकता है। क्यों? ताकि जब फॉर एग्जांपल आप ये ऐसे लेकर, अगर एक स्कूल में 50 टीचर हैं, एक हेड मास्टर है, एक प्रिंसिपल है, देन यू हैव प्रिंसिपल की पोस्ट खाली, तो 50 में से किसी को भी प्रेसिडेंट साहब बना सकते हैं हेड प्रिंसिपल। ओके, अगर उनका चेयरमैन है, एक तो हो सकता है चेयरमैन की पोस्ट ही वैकेंट है, सेकंड इज दैट कि चेयरमैन अपने फंक्शंस नहीं कर पा रहा ड्यू टू सम एब्सेंस और अदर किसी और रीजन से, वो आ नहीं रहा, किसी लीव में है 1-2 साल के लिए, दैट्स वाई ना, लॉन्ग लीव, मेडिकल लीव से ना, दैट्स वाई। तब ठीक है, सो एक्टिंग चेयरमैन फंक्शंस स्टिल अ पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन, तो वो तब तक काम करेंगे जब तक उस जगह कोई और आ नहीं जाता, या तो एग्जिस्टिंग वाला या कोई नया। ठीक है, any person who has once held the office as a member of Public Service Commission is ineligible for reappointment in that office. एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, 5 साल काम कर लिया, फॉर एग्जांपल आप 52 में ज्वाइन करते हो, आपकी एज 52 है, देन यू promoted for some other or demoted, I don't know, okay, let us just assume आप 5 साल यहाँ वर्क करते हो एंड यू विल गो टू द 57 में आप यहाँ से निकल के फॉर किसी स्टेट में काम करने जाते हो या किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हो। सो अगर आप बोलो कि अगर दोबारा से आपको यही अपॉइंटमेंट चाहिए यूपीएससी के अंदर, दैट इज नॉट हैपन, दोबारा से आपको नहीं मिलती। कमिंग टू द रिमूवल ऑफ मेंबर्स, द मेंबर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एज वेल एज द प्रोसीजर इज गिवन इन द 317 आर्टिकल। ठीक है, ओके। तो सबमिट, और अगर उनको रेजिग्नेशन देना हो तो प्रेसिडेंट साहब को देंगे। रिमूव कैसे किया जा सकता है? अगर वो इंसॉल्वेंट हो, ठीक है, इंगेज्ड इन एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज, जैसे डॉक्टर्स करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स पहले करते थे, अब तो आई डोंट, इट्स टफ टू डू, अपना क्लिनिक चला के भी जॉब करनी होती है, दैट्स व्हाई दैट इज काइंड ऑफ एग्जांपल। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब करनी है और अपना क्लिनिक भी चलाना है। इफ द प्रेसिडेंट ओपाइंस द मेंबर इज अनफिट टू कंटिन्यू हिज ऑफिस, ठीक है, इलनेस और सभी अदर माइंड की वजह से, किसी न किसी चीज़ की वजह से अगर वो अनफिट है, तो प्रेसिडेंट साहब बोल सकते हैं। मिसबिहेवियर क्राइटेरिया, apart from the above criteria, the president can also remove the chairman or any other member of यूपीएससी अगर मिसबिहेवियर होता है तो प्रेसिडेंट साहब अपने मैटर जो भी आएगा, ये बिहेवियर मिसबिहेवियर का मैटर, इसको सुप्रीम कोर्ट में सेंड करते हैं, इंक्वायरी ऑफ होगी मिसबिहेवियर पे। देन अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ठीक है जी, अगर जो हमें प्रेसिडेंट साहब ने बोला था कि ये बंदा मिसबिहेवियर कर रहा था, यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन, तो उसको प्रेसिडेंट साहब रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो भी रिकमेंडेशन आएगी, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यस मिसबिहेवियर हैज़ बीन डन, तो ये रिकमेंडेशन माननी पड़ेगी। अगर रिकमेंडेशन आए सुप्रीम कोर्ट की कि नो, देयर इज नो मिसबिहेवियर, सो ये भी मानना पड़ेगा सुप्रीम, मतलब प्रेसिडेंट साहब को, जो भी आएगा वो बाइंडिंग होगा डिसीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन has defined term misbehavior in the context, in this context, that the chairperson or any other member of state public service commission is deemed to be guilty of misbehavior. तो guilty is maybe misbehavior कैसे? Is concerned or interested in any contract or agreement made by the government of India or the government of the state. तो मिसबिहेवियर को डिफाइन किया गया है, ठीक है, चेयरपर्सन या अनदर मेंबर किसी भी हो, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कि अगर वो कंसर्न होता है या इंटरेस्ट दिखाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो पार्टिसिपेशन ऑफ एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच एज, देखो फॉर एग्जांपल कोई उसके एक मेंबर है यूपीएससी का, उसके रिलेटेड उसको कुछ करना है, फॉर एग्जांपल उसको किसी को फेवर करना पड़े फॉर मनी फॉर एनीथिंग, सो इस केस में ठीक है, जैसे
एनी वे इन पार्टिसिपेशन करे वो इन एनी वे प्रॉफिट के मामले में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में करे ना बेनिफिट ले किसी चीज़ से. In that case, coming to very important the functions of UPSC under Article 320 of the Constitution of India, the Commission of is inter alia required to be consulted on all members relating to recruitment to civil services and posts. The functions are this. So let us just conduct the examination. We all know conduct the examination, direct recruitment. Okay. Directly means in literal entries, direct interviews for the departmental persons. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, अपॉइंट करना, उनको अब्जॉर्ब करना या डेपुटेशन पे भेजना. रिक्रूटमेंट के रूल्स बनाना. डिसिप्लिनरी केसेस लेना, जैसे कि सेंसर हो गया, और इंक्रीमेंट्स देखना, प्रमोशन, पेक्युलर लॉसेस देखना, अंदर रिडक्शन ऑफ लोअर सर्विसेज ऑन रैंक, कंपल्सरी रिटायरमेंट एक्सेट्रा. एडवाइजरी फंक्शंस अगर आप देखें इनके, वन इज दिस मेन फंक्शंस. एडवाइजरी फंक्शन में अगर आप देखें, यूनियन की सर्विस के लिए अगर आप देखें तो एग्जामिनेशन, ठीक है, कराना, ठीक है, यूनियन सेंटर की सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट करवाना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराना, उसमें एडवाइस दे सकते हैं. अपॉइंटमेंट, फ्रेमिंग द अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स, देन यू हैव डिसिप्लिनरी केसेस, देन यू हैव एडवाइस करना, जो कमीशन, जो प्रेसिडेंट साहब ने कुछ फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है प्रेसिडेंट साहब के पास, तो उन्होंने किसी कमीशन को बना दिया, तो कमीशन का एक मेंबर हो सकता है यूपीएससी का बंदा भी, तो एडवाइस करना वहाँ पे भी जाके गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट साहब को या उस कमेटी. फ्रेमिंग प्लान्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट ऑफ सर्विस और सर्विसेज, इट असिस्ट्स द स्टेट if asked by two or more states in framing and operating the plan of joint recruitment for any services. जॉइंट रिक्रूटमेंट ऐसे हो सकता है कि कोई स्टेट बोले वी आर नॉट कैपेबल टू डू सो, कि हमारी रिक्रूटमेंट हो जाए. फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश पुलिस की रिक्वायरमेंट है पुलिस की, लेकिन दे आर नॉट कैपेबल सो टू भी हम इस अरेंज करवा पाएँ इतने बड़े लेवल पे, ठीक है, मध्य प्रदेश ओनली. बट ठीक है, इन एनी केस, इन द रस्ट केस सिनेरियो, तो या मध्य प्रदेश बोल दें, मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलके बोल दें, ठीक है, या फिर 3-4 स्टेट मिलके बोल दें कि आप करवा दो, तो यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, ठीक है. कैडर रिक्रूटमेंट भी देखते हैं. रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, any claim of reimbursement of legal expenses incurred by a civil servant in defending legal proceedings institution against him. So legally आप reimbursement मिल सकती है, that is seen by the UPSC itself. Addition of these functions, Parliament is empowered by the Constitution to add new functions to UPSC. It also adds a personal system of authority, public institution, corporate body with the jurisdiction of UPSC. It's very simple कि पार्लियामेंट हैज़ पावर कि जो फंक्शन यूपीएससी कर रहा है उस पर एडिशनल फंक्शंस भी ऐड किए जा सकते हैं. कमिंग टू रिपोर्ट्स, एवरी ईयर द यूपीएससी सबमिट्स अ रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. President present the report to the Commission before the Parliament along with the memorandum related to the cases where the advices of the Commission was not accepted. ठीक है, बेसिकली रिपोर्ट जो कमीशन की रिपोर्ट होगी, प्रेसिडेंट साहब वो रिपोर्ट को पेश करेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ उस कमीशन की अब बातें नहीं मानी हुई, दैट इज मेंशन स्पेसिफिकली, मतलब कमीशन ने कुछ रेकमेंड करा वो नहीं माना गया, दैट इज मेंशन स्पेसिफिकली हियर. द रीजंस फॉर सच नॉन एक्सेप्टेंस आल्सो प्रेजेंटेड. देखो रीजन, क्योंकि जो आपने, ठीक है, हमने ये बात नहीं मानी, क्यों नहीं मानी वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है. पावर्स, द यूपीएससी इज मेनली एडवाइजरी पावर्स. इट कैन give advice to the president and the governor of the state for the following affairs. अपॉइंटमेंट इन द सिविल सर्विसेज के रिलेटेड आप एडवाइस दे सकते हैं. स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं अपॉइंटमेंट के, प्रमोशंस के, ट्रांसफर्स के, पंक्चुअलिटी के लिए और डिसिप्लिन के लिए. डिमांड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, अगेन पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर, कंपनसेशन, ठीक है, इजी, वेरी इजी. इंडिपेंडेंस, Indian Constitution has made certain safeguards and secure their independent functions. Now, salaries withdrawn independent of the parliamentary voting. The expenses of the UPSC, including salaries, allowances, and the pension of the members or the staff of the commission, are charged on the consolidated fund of India. Means directly like CFI से अलग नहीं है,
ये कंसोलिडेट फंड से निकाले जाते हैं, ठीक है। Canada security, the members can be removed from the office only by the president on the ground, as well as the procedure which is given in 317 that I have seen, that we have seen in the constitution. तो कंडीशन ऑफ, तो बेसिकली क्या है, ऐसे सिक्योरिटी है नहीं इतनी, ठीक है, रिमूव किए जा सकते हैं, बट दे आर रेयर केसेस ऑफ कोर्स। Conditions of service, condition of services cannot be changed to their disadvantage after appointment of members or chairpersons. Eligibility of reappointment. Members are eligible for reappointment as chairman of UPSC or SPSC, but not for any other employment in the government of India or state. Important. Not chairman of commission is not eligible for further employment in the government of India or state. Second term eligibility. सेकंड टर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं है ऑफकोर्स। रोल, सो सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो हमने देखा, ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए आप काम करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है ना। कमिंग टू दिस, दिस इज जस्ट दैट दिस मैटर जो है, देखो, एडवाइजेस द गवर्नमेंट व्हेन कंसल्टेड ऑन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मेजर, ठीक है। तो एडवाइस भी करना गवर्नमेंट को जो प्रमोशन का मामला हो कि किस बेसिस पे प्रमोशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन मैटर्स क्या रहने चाहिए, ठीक है। So that are handled by Department of Personnel and Training, ठीक है। So that is one of the three departments of Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी हमने देख लिया, इंटरल आई है, ठीक है। Limitations. In order to exempt some posts which are reason of national security or some other reasons may not be required to refer to the commission for their advice. Some of the posts होती है ना, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो जाती है, वो रेफर नहीं की जाती, ठीक है। While making reservations of appointments or posts in favor any backward class citizens, reservation of SC/ST is done. Composition of tribunals and selection in group C and D officer. तो कंपोजिशन ट्रिब्यूनल्स में देखना, ट्रिब्यूनल्स आर नथिंग, वो एक्स्ट्रा बॉडीज बनाई जाती हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स देखना, कोई है नहीं अवेलेबल, उस पोस्ट खाली है तो किसी को अपॉइंट करना, उसको एडिशनल ड्यूटीज देना। प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट्स एंड सर्विसेज द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ the president on the advice of council of ministers can exclude posts and services and methods from the purview of the यूपीएससी। कुछ पोस्ट और सर्विसेज को यूपीएससी के व्यू से दूर रखा जा सकता है, ठीक है। President can take away its advisory function. The constitution states that the president, in respect to all India services, central services, public services, on the advice of the council of ministers, may make regulations specifying the matters in which it shall not be necessary for UPSC to be consulted, ठीक है। Some of the days में आप कंसल्ट भी नहीं कर सकते। Now coming to CBC versus UPSC, since the emergence of the CBC, the role of UPSC in the disciplinary matter has been affected. CBC and UPSC are consulted by the uh, government while taking disciplinary actions against the civil servant. Basically सीबीसी और यूपीएससी को तभी कंसल्ट किया जाएगा जब किसी पर्सन, गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ आप डिसिप्लिनरी एक्शन लोगे। तो यूपीएससी बीइंग अ इंडिपेंडेंट बॉडी हैज़ एन एज ओवर सीबीसी, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ एन इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। एंड सीबीसी गॉट इट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 2003. So this is about the Union Public Service Commission as a constitutional body or independent body. Let us just move to the next lecture. We'll just move to the state PCS. PSC. Thank you.